There was something happening here that was bigger than just Jeffrey Epstein. हेलो एंड वेलकम टू अनदर एक्सप्लेनर टॉक। आजकल आपने जेफरी एप्स्टीन के बारे में सोशल मीडिया पे बहुत सुना होगा। He was stunningly rich. He had a $20 million house, his own private island in the Caribbean. It has a nickname, the pedophile island. उनको इमरान खान के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? Before I decipher this, let's go into who Jeffrey Epstein was, how this middle class guy becomes a billionaire. The monsters are still out there. You took our freedom, now we're going to take yours. Jeffrey Epstein was born to a middle class Jewish family. उनके पास इतने resources नहीं थे कि वो उसकी ट्यूशन इसके पेरेंट्स बेयर कर सकें, ट्यूशन फी। वो इस तरह से अपनी ट्यूशन फी को बेयर किया करता था। Afterwards he went to college. He was very good in maths. He was very smart, witty guy. वहाँ से after his college, God knows कि उसने college अपना complete क्यों नहीं किया, and he went to Dalton College for teaching. अब उसकी डिग्री तो नहीं थी, लेकिन वो वहाँ पे मैथ्स पढ़ा रहे थे, तो he knew that he didn't have any future in teaching. वहाँ पे एक किड के पेरेंट जिनका नाम एलन ग्रीनबर्ग था, वहाँ उनको मिलते हैं, और एलन ग्रीनबर्ग was the CEO of Bear Stearns. Jeffrey Epstein very impressive, and he takes him into banking sector. They used to work together. Jeffrey Epstein started managing finances for the billionaires. उसी तरह से he started meeting other people from the Wall Street. He earns name in the Wall Street. वहाँ पे वो मिलते हैं Leslie Wexner. Leslie Wexner was billionaire, and he was the owner of the limited company, the Body and Bath Works, and other companies as well. And he started working with Jeffrey Epstein because Jeffrey Epstein at that time has earned enough name to be working with the billionaires and with the huge companies. इसी तरह से बट लेस्ली वेक्सनर के साथ तो वो पार्टनर अप करके फाइनेंसेस को मैनेज कर रहे होते हैं। फिर एक और बिलियनियर को मिलते हैं जो कि बेसिकली वाज अ बिजनेसमैन, बट he is also known as fraudster in US history. उनका नाम था स्टीव हॉफनबर्ग। स्टीव हॉफनबर्ग used to run Ponzi schemes. उन schemes के through they used to lure in investors for getting huge dividends. Jeffrey Epstein started making huge fortunes. His net worth started doubling, tripling, multiplying. Jeffrey Epstein, he buys a mansion in Manhattan that was a $77 million mansion, 25,000 square feet. A ranch in the New Mexico City, an island in the US Virgin Islands, and a house at Palm Beach. वहाँ से Palm Beach में he started living at the Palm Beach house. वहाँ पे West Palm Beach basically contains middle class families. वहाँ पे मिडिल क्लास के लोग रहते थे। जेफरी एप्स्टीन had a girlfriend whose name was Ghislaine Maxwell. Basically she was a socialist. She was the daughter of a businessman from UK. She was British. अब ये नहीं पता किस तरह से उनकी फ्रेंडशिप हुई। जेफरी एप्स्टीन के अगेंस्ट केस रजिस्टर होता है in 1996। उसमें फार्मर सिस्टर्स होती हैं, उन्होंने जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ ये रजिस्टर किया कि इन्होंने सेक्सुअली हरास्ट किया। It's a train and it goes on and on and on. गिलेन मैक्सवेल बेसिकली ने उन्होंने बुलाया। मरिया फार्मर वाज एन आर्टिस्ट, उनको बुलाया कि आपकी आर्ट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। एक्चुअली सेमी न्यूड पिक्चर्स होती थी जो कि वो बनाती थी। जेफरी एप्स्टीन देयर इज दिस बिलियनियर हु वांट्स टू मीट यू, और वो उनको बुलाते हैं। इस तरह मुलाकात होती है, लेकिन जेफरी एप्स्टीन रेप्ड मरिया फार्मर, और इस तरह से उसकी सिस्टर को भी बुलाया और सिस्टर को कहा कि आपको हम फलाने स्कूल में भेजेंगे, और वो फैशन डिज़ाइनिंग में जाना चाहती थी और फैशन डिज़ाइनिंग में उनको भेजा, लेकिन एट द सेम टाइम they invited her to his ranch और वहाँ पे उसके साथ भी रेप किया। At his Palm Beach house there was this report registered with the Palm Beach Police Department, and at that time police officer was Michael Reiter, और माइकल राइटर को ये रिपोर्ट मिलती है कि there is some teenage minor girls that are coming at जेफरी एप्स्टीन्स हाउस। वहाँ पे ही स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग द केस। अब उस केस में ही फाइंड सम इंफॉर्मेशन अगेंस्ट जेफरी एप्स्टीन, बट ही ट्राइज टू रजिस्टर द केस एंड इन्वॉल्व FBI बिकॉज ही न्यू दैट जेफरी एप्स्टीन वाज सो पावरफुल कि उसके अगेंस्ट केस नहीं किया जा सकता। अगर किया जा सकता है तो वो इंटिमिडेट करता था टू द विक्टिम्स, टिप ऑफ टू द पुलिस ऑफिसर्स, तो इस तरह से वो बचा गया। लेकिन FBI ने उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट की, वहाँ से ये पता चला कि ही इज much more powerful than they have imagined. अब केस की कोशिश की गई कि जेफरी एप्स्टीन उसके खिलाफ केस फेडरल कोर्ट में चलाया जाए, स्टेट से फेडरेशन के पास ये केस जाया जाए। जेफरी एप्स्टीन इज बेसिकली
एक्सप्लॉइटिंग सेक्सुअली असॉल्टिंग द माइनर गर्ल्स। इस तरह से बहुत सारे केसेस थे। कुछ को जेफरी एप्स्टीन यूज्ड टू कॉल, वो उसके साथ जो ब्रोकन फैमिली से थी दे वर परमानेंटली वर्किंग विद हिम। अगर एक वुमेन वाज सेक्सुअली असॉल्टेड तो वो उसको कहता था कि आपको और 200 दूंगा, नेक्स्ट किसी को लेके आएंगे तो आप यू वोंट हैव टू बी इनटू सेक्स, बट आपने किसी नई लड़की को लेके आना है। बेसिकली दैट वाज फॉर मसाजिंग पर्पसेस, बट ही यूज्ड टू लाइक सेक्सुअली हरास देम, सेक्सुअली असॉल्ट देम एंड रेप देम एट द एंड। ये केस फेडरल कोर्ट के पास चला जाता है। सेक्रेटरी एकोस्टा इस केस को फेडरल लेवल पे देख रहे होते हैं और सेक्रेटरी एकोस्टा बट went into a plea deal with Jeffrey Epstein, और उसमें ये होता है कि he would be charged for 18 months for solicitation of prostitution, लेकिन कोई बड़ा केस नहीं होता है और उसकी जो सज़ा होगी उसको एक स्टेट की प्रिजन में होगी, बट एंड ही वुड बी अलाउड टू वर्क। सो बेसिकली दैट वाज नॉट द पनिशमेंट फॉर जेफरी एप्स्टीन। बट लेटर ऑन ये केसेस और बड़े होते गए और देयर वर बिगर नेम्स जो कि उसके लिस्ट में आते गए। बिल क्लिंटन वाज ए फ्रेंड विद हिम, Donald Trump, Kevin Spacey was on the list, Mohammed bin Salman and many other names from Hollywood. He used to traffic those minor girls to his island, to his ranch for his friends and for the parties. 2018 में दोबारा इस केस को लॉन्च किया जाता है और उसमें जेफरी एप्स्टीन को दोबारा चार्ज किया जाता है फॉर prostitution, for sex trafficking of the minors. जेफरी एप्स्टीन 2019 में अंडर मिस्टीरियस कंडीशंस वो अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं और अपने आप को मार लेते हैं। उसके बाद से कुछ ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं दे वर केप्ट सीक्रेट, जिसमें नंबर ऑफ पीपल वर इंक्लूडेड विद जेफरी एप्स्टीन in exploitation of minors, in sex trafficking. Those documents are being still released, जहाँ पे ये भी कहा जाता है कि ex Prime Minister इमरान खान was also on Epstein's list because वसीम अकरम ने ये अपनी एक पॉडकास्ट में कहा था कि वहाँ से किसी एक मिस्टीरियस आइलैंड पे उसको लेके जाते थे और फिर उसकी गर्लफ्रेंड थी, इमरान खान की गर्लफ्रेंड थी या फ्रेंड थी, तो वो फिर कहीं और चले जाते थे, बट वी यूज्ड टू बी हैंगिंग आउट विद अदर गाइज। दैट वाज बेसिकली जेफरी एप्स्टीन्स केस, और जेफरी एप्स्टीन was that filthy rich billionaire who exploits broken families for the money. That's how our wealthy are doing to the middle class, to the poor actually. Thank you so much for watching this. Hopefully you would like this explainer. अगर आपको ये पसंद आया तो do support us, subscribe to our channel and share it with your friends.